बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी एंड मैं हीरोइन बनना चाहती थी. देखिए फिल्म्स होता है और मूवीज होती हैं, ठीक है, तो मैं प्रभावित थी. जरा समझाइए. Okay, sure, I can do that. Please. So films can be something which can make you experience the mundane, the real, the in the moment, the slice of life. That's a movie. That's a film. That's a film. But a movie is when you go to the big screen and then it takes you on an adventure. It takes you on something that's way bigger than you. And you know you want to experience that, something that is beyond your imagination. Like Bahubali. Like Bahubali. So for me, मैं बहुत movies से प्रभावित थी, क्योंकि मैं जब छोटी थी मैं बहुत फिल्में देखा करती थी. एंड तभी तो खैर अब जो आप इंटरनेट है और जो आप बटन दबाइए और फिल्में आ जाती हैं. बट हमारे यहाँ पर तभी देवर दिस चैनल्स, हम चैनल बदलते, 4 मूवी के चैनल आते थे, तो उनमें से यू टू वॉच इंग्लिश फिल्म्स एंड कुछ किस में हिंदी आते थे, किस में इंग्लिश आते थे. देन वी हैड टू वो CDs लेनी पड़ती थी. तभी CDs हुआ करती थी जो आप प्लेयर में डालते थे और वो रेंट पे मिलती थी. So I used to take money. I'm loving this, the way you're using your hands. CD, rent पे आती है. Yeah. हम बात कर रहे थे. Yes. We were talking about how to use your hands. Don't think much. I'm not thinking. So I loved that CD का time because मैं rent पे लिया करती थी. And तभी हम बचपन में इतने पैसे तो नहीं होते थे, तो I would take money from my parents and I would be like, तभी I remember take 1,000 rupees because एक CD 100 रुपए की आती थी. So take that CD, take it on rent, watch it and then give it back to the CD वाला. और अगर आपने वो CD गुमा दी तो फिर 500 रुपए. तो you can't lose the CD. And मैं तो बहुत भुलक्कड़ थी उस बचपन में, तो ऐसे कहीं पे भी रख देती थी, फिर सब ढूंढते रहते थे. But anyway, so it was that दौर. And मेरे माँ बाप शायद ये देखते थे. कोई ऐसी CD जो बहुत रिपीट में देखी हुई, यार ये तो बहुत पसंद आ गई. The Mummy. I really feel I was Egyptian in my last many lives ago. I don't know why. I love. And that actress had such dreamy eyes. Rachel, right? Yeah. But even I had a huge crush on Brendan Fraser. नहीं, मैं हीरोइन को देखने में बिजी था. I mean, clearly we have different priorities. So yeah, for me, I had a huge crush on him. I always thought that's like, since a young girl, I was like, Brendan Fraser is epitome of manlyhood. Nice. Yeah, so that was the film I've seen many times. मतलब on repeat. I remember every dialogue of that film. अगर अभी भी वो प्ले हुए तो मैं हर कैरेक्टर का डायलॉग मैं बोल सकती हूँ. वाह. So yeah, I think तो मेरे पेरेंट्स ने ये देखा कि ये मुझे जुनून था. ये पढ़ाई में मैं अच्छी थी. I was doing a good job and I was academically inclined as well. But I think when I was 13 and a half and I got the opportunity to do theatre, that was when things changed big time. Because theatre कैसा था कि हम लोग पूरा दिन स्कूल में होते थे, स्कूल ख़त्म करके I would go to the theatre class, then I would have homework and I have some theatre का homework and I would do that till about 12:30, 1, sometimes 3 बज जाते थे क्योंकि कुछ भी होमवर्क हो या कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हो तो वो आई वुड डू इट ओवर द नाइट एंड आई वुड अगेन गो टू स्कूल एट 8 AM. और ये 1 साल तक चला. और आई थिंक मेरे माँ बाप ने ये नोटिस किया कि ना तो मैं टाइम देखती हूँ, ना तो मैं थकावट देखती हूँ, ना तो मैं कैसा महसूस कर रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए जब मैं ये काम को कंडक्ट कर रही हूँ. एंड वो जेन्युइनली मेरा इंटरेस्ट समझ रहे थे. जबकि मेरा फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं था. एंड nobody from my family had anything to do with the movies. But when I was in school itself मुझे opportunities आना शुरू हो गया. तो वहीं से अब जो अपने आप आ रहा था तो we were not and my mom was very scared. I think she was very concerned. And इसीलिए my mom and dad both traveled alternatively for 9 years of my career. शूट के दौरान आपके साथ. तो जो आप देखते हैं कि say an actor like me जिन्होंने 20 साल तक काम किया, almost 9 to 10 years of my career were actually my parents supporting me physically by actually coming to shooting, spending long days, waiting many times.
इट्स सो जो इंसान जो इतने सालों के बाद जब जीतता है या सक्सेस हासिल करता है तो वो एक इंसान की नहीं होती बट एक पूरे परिवार की होती है काफ़ी टाइम. एंड आई एम लकी टू से कि ये मेरा जो सक्सेस है वो मेरा सिर्फ खुद का नहीं है. ये मेरे माता पिता ने जो अपनी ज़िंदगी भी डाली है मेरे लाइफ में, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ आपके सामने. कहाँ थिएटर करती थी आप? मुंबई में. हमें पृथ्वी थिएटर में एक छोटी सी जगह मिली थी. नीरज जो पहले उनकी समर वर्कशॉप होती थी. जी, तो वो समर वर्कशॉप से शुरू हुआ था. नीरज काबी थे मेरे टीचर एंड उन्होंने समर वर्कशॉप ख़त्म की एंड देन ही स्टार्टेड प्रवा विच वाज हिज थिएटर ग्रुप एंड ही स्टिल टीचर्स and actually acted with him recently, which was like, again, you know, world coming all the way around. And that show will come out soon now. It's called Do You Want a Partner? Amazon पे आ रहा है? Prime Video, yeah. But you have to sit and watch कि हम क्या बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. That'll be fun though. It's a good one. लड़कियां शराब का स्टार्टअप करेंगी तो कितने लोगों की थ्योरियां चढ़ेंगी. इसका हम अमेज़न वालों को अलग से बिल भेज देंगे to build curiosity around their new show. Yeah, I just think that it's interesting जब women and conventionally good-looking women try to do anything. दो टाइप के रिएक्शंस मिलते हैं. एक होता है कि don't worry, you know, we will support you because you're two very young women, you know, we will be there for you, and we as men want to support, so that sort of pretty savior. privilege. It's like that savior syndrome of like, you know, we'll come and save you and, you know, you need that support, so we'll give it to you. That's sort of that's one reaction we get. And another reaction is, that's not even possible. What are you guys thinking? How can you do this? It's a bad idea. So you get these two very radical. You are too pretty to do this, huh? Yeah. That's so it's fun. It's interesting. It's an interesting world of the two different दो किस्म के लोग. Yeah. How was it? जिनसे आपने थिएटर सीखा, शुरुआती एक्टिंग की ट्रेनिंग ली जी, और फिर कैमरे के सामने उनके साथ आप एक्ट कर रहे हैं. Yeah. I become like a kid. मुझे बहुत ही अपना बचपन याद आ जाता है immediately और I think I become very vulnerable around you know, my teachers because I feel like intimacy बहुत अलग अलग टाइप की होती है बट आप जो intimacy अपने जो आपको सिखाते हैं ना वो आपकी नस नस को जानते हैं और वो आपको इंसान के तौर पे ऐसे तरीके से जानते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं. आपके बहुत करीबी दोस्त भी शायद आपको वैसे नहीं जानते जैसे एक टीचर जानता है बिकॉज दे आर वॉचिंग एवरी मूवमेंट ऑफ योर्स एंड दे नो यू ऑन अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल. सो या इट वाज सरियल फॉर मी एंड आई वाज गेटिंग इमोशनल एक्चुअली. हमने एक बहुत ही इंटेंस सीन किया था एंड देन आई वाज लाइक यू नो सर आई एम सो हैप्पी दैट मैं आपके साथ ये सीन कर पा रही हूँ बिकॉज जिन्होंने मुझे सिखाया है उनके साथ परफॉर्म करना इट्स अ हाई. और कौन कौन था उस दौरान आप लोगों के साथ थिएटर ग्रुप में? Interestingly, there was Advait Chandan. I don't know if you know जी. So he's a wonderful filmmaker. He's done so much work with Amrit. Secret Superstar, yes, Lal Singh I love his movies. Love Yapa. I think he's just an amazing filmmaker, and I'm so proud of him because he's done such beautiful cinema. And yeah, he's someone हम जब मिलते हैं. In fact, अब मैं एक फिल्म कर रही हूँ IPS Maria. जिसपे रजा इज द कैमरामैन एंड इट्स रोहित शेट्टी सर्स फिल्म विद जॉन. ये राकेश मारिया की बायोपिक है? जी, राकेश मारिया जी की बायोपिक है एंड रजा द कैमरामैन इज. आप उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं? हाँ जी, प्लेइंग राकेश मारिया जी वाइफ. टीम ने बहुत मेहनत की है इसका. आई नो दे आर वेरी वेल इक्विप्ड. सो रजा हैं जो कैमरामैन है उस फिल्म पे, वो भी इसी थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे. तो मेरे लाइफ में बहुत अजीब सा एक दौर चल रहा है जब सब वो जो शुरुआत में लोग थे वो सब आके कहीं ना कहीं बचपन के दोस्त मिल रहे हैं, मुझे जुड़ रहे हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पर जब ये थिएटर वगैरह कर रही थी तब कुछ और भी जहन में रहा होगा, जैसे कई लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी. जी, मेरे फैमिली में सब लोग मेडिकल प्रोफेशन में से थे, सो आई थिंक दैट वाज अ नेचुरल इनक्लिंग कि अगर
कुछ करना है तो शायद साइंस, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन, तो मेरी 5वीं फिल्म थी विच वाज कॉल्ड हैप्पी डेज. हैप्पी डेज. इट वाज अ तेलुगु फिल्म जहाँ पर मेरे साथ 7 और लोग थे. It was an ensemble film, and we were all 17-year-old kids, and मेरे लिए वो दौर लंबा लगा मुझे क्योंकि मैं almost since 13 I was performing, so for me it felt longish, and it was like my first film. तो किसी ने देखा ही नहीं, वो जो अच्छी बात है. I'm thankful कि किसी ने मेरी पहली फिल्म नहीं, हम लोगों ने वो फिल्म भी खोज निकाली है YouTube पे उसके. नहीं देखी, but you know, so I think I'm lucky that I was in a phase जब कोई there was no internet and nobody was watching anything, so it was great. So we got a chance to mess up and learn, which is great. But yeah, my 5th film was very it was trend setting for Telugu films, because Telugu films always had a very it was slightly more commercial in format. People always had, you know, the 4 songs, 3 fights, hero entry, heroine, you know, dancing, looking beautiful. That kind of a format was always there in Telugu cinema, and celebrated as well. तो ये एक फिल्म थी 8 बच्चों की जो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं और उनकी लव स्टोरीज हैं, उनकी लाइफ की स्टोरीज हैं. 4 कपल्स हैं. तो वो लोगों को बहुत पसंद आई. उस वक्त पर बहुत नया था तेलुगु फिल्म्स के लिए, एंड बहुत चली वो फिल्म. इंटरेस्टिंग. पर ये चांद सा रोशन चेहरा में क्या मसले थे? आप इतनी जल्दी कि अरे नहीं कोई बात नहीं मत देखो उसको. No, I think I was. कितनी उम्र थी आपकी? When I shot it, I was 14. It released when I was 15. I was in 10th standard when it released. And yes, I was the female lead. I know I get that reaction all the time, so it's clarifying. हाँ, मतलब लेकिन सारी ट्रेनिंग एक तरफ, लेकिन 14 साल की उम्र में जब आपको स्क्रीन पे वो हीरोइन वाला रोल, किसी के लव इंटरेस्ट वाला रोल करना है, तो मैंने सारी माधुरी मैम, श्रीदेवी मैम सबकी फिल्में देख रखी थी, तो मुझे लगता था कि मुझे समझ में आता है. ये एक उम्र होती है ना कि आपको लगता है कि आपको सब आता है. मैंने फिगर आउट कर लिया है. आई नो दिस, आई कैन डू दिस, आई नो दिस लव इमोशन. Of course, I had no experience of it whatsoever. In fact, I remember my director coming up to me and saying ki, I don't know how to talk to you, because how do I expect you to express an emotion जो आपने experience ही नहीं किया है. I'm like, sir, लेकिन मैंने माधुरी मैम की सारी फिल्में देखी है, मुझे पता है. I think I now I feel bad for my director because he was dealing with a kid, but yeah. तो कैसे हुए कास्ट? Take it till you make it. Yeah. तो ये आपने such a goofball. और बोल भी दिया. But aren't I? You are. तो आपने माधुरी दीक्षित को बताया कि मैंने आपको देख के बहुत सारा. I love her. I've gone. So my best friend is actually her makeup artist. So I requested my best friend to tell Madhuri ma'am I want to meet her. क्या नाम है उनका? Billy Manik is my best friend. जी. And she works with Madhuri ma'am. And तो मैं एक दिन गई उनके वैन में और मिली, और वो बहुत प्यार से, इतने प्यार से उन्होंने बोला मेरी तमन्ना, और आई, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरा दिन बन गया और मैं बहुत खुश हुई उस दिन. Nice. Yeah, it was a happy day for me. तो वो जो पहली फिल्म है चांद सा रोशन चेहरा, उसकी कास्टिंग कैसे हुई? जो हीरो थे बहुत ही खूबसूरत थे मतलब हैं, जिंदा हैं. अच्छा, हाँ. बट उस वक्त पे बहुत ही वाज अ यंग चार्मिंग बॉय. क्या नाम था उनका? समीर आफ्ताब. सो क्योंकि वो इतने खूबसूरत थे, और आई थिंक समवन हु वाज अ लिटिल मोर like cute, childlike would have looked nice, and so I guess they casted me. ये एक मास्टर क्लास होने वाली है कि हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल अपने आप को एक्सप्रेस. In a frame. How do you move your hands? हाँ, तो समीर आफ्ताब जी के अपोजिट आपको कास्ट किया गया. कास्टिंग कैसे हुई? I auditioned for it. मुझे एक सीन दिया गया, एंड तो आप उसके पहले ऑलरेडी यू वर अप्रोचिंग वेरियस प्रोडक्शन हाउसेस. किस तरह से ये वर्क किया? मैं स्कूल में अपने स्कूल में मैं एक एनुअल डे फंक्शन पे परफॉर्म कर रही थी, एंड जी डांस कर रही थी, एंड सलीम अंकल एक्चुअली वो अब नहीं रहे एक्चुअली. ही रिसेंटली सलीम अख्तर. यस, ही रिसेंटली पास्ड अवे. एंड उन्होंने मुझे
नोटिस किया ऑन स्टेज. उनके दोनों बच्चे मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे. तो ही वॉज लाइक आइए ऑडिशन करिए, हमें लगता है कि आप हमारी फिल्म में सूट होंगी एंड लॉन्च करना चाहते हैं आपको. एंड ही हैड लॉन्च्ड रानी मुखर्जी, राजा की आएगी बारात जी, उन्हीं की फिल्म है. And for somebody like me, I didn't have any background in the movies and I didn't have any inroads and I was like, ये मेरा एक नज़रिया रहा है कि मैंने आज तक किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा बड़ा नहीं समझा है. शायद मैं इतनी दूर पहुंच पाई हूँ क्योंकि मैं उस अपॉर्चुनिटी में क्या कर सकती हूँ, मैंने हमेशा वो ढूंढा है. ये बचपन से रहा है मेरा तरीका. एंड तब मैंने नहीं सोचा, तब मैं सिर्फ खुश थी कि मैं कैमरा के सामने परफॉर्म कर सकती हूँ उसके द्वारा. सो आई टुक दैट अप एंड आई ऑडिशनड एंड द ऑडिशन वाज गुड आई गेस, सो दे टुक मी ऑन. बट मनस्थिति कैसी होती है? मतलब एक तरफ आप स्कूल जा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, वो सब चीजें, और अब आपको पता है कि अब मैं एक फिल्म में हीरोइन, मतलब ये और 13-14 साल में आपकी इमोशनल मैच्योरिटी वैसी नहीं होती है कि यू कैन हैंडल इट ईजिली. तो क्या चल रहा होता है स्कूल में? आपने बता दिया सबको कि मैं फिल्म कर रही हूँ. तो बहुत से लोग नहीं जानते थे कि मैं फिल्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे बाल कलर हो चुके थे. तो मेरी दुविधा ये थी कि इमेजिन इन द 9th and 10th स्टैंडर्ड इफ यू हैव टू पुट ऑयल इन योर हेयर एंड गो एवरी डे टू स्कूल, इट्स सो एम्बैरेसिंग. Because everyone's looking so nice and everyone's starting to do fashion and all that and they're putting their socks like in whatever how they want, and I was like putting my socks up and I was with tail in my hair and going like, because I had to be like, I had to underplay the fact that I'm going to be coming on camera, because some people knew and they were like, why is your hair looking different? Because my hair was colored. The only way to hide colored hair is oil them. Okay. Because otherwise you'll see highlights in the hair. So you'll know बच्चों को कहाँ से highlight करना allowed होता है. तो anyway, I colored my hair, so I was putting oil every day and going to school, which was चंपा का तेल लगा के पहुंच गई. Full, I'd become full champak lal that time, and it was, yeah. So that's my boring story of school life. Didn't have much there, but yeah, एक तरफ ये चल रहा था, and लोगों को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज नेचुरली आई थिंक अगर मैं भी शायद उनके प्लेस में होती तो शायद मैं भी सोचती कि इसको क्या हो गया, लाइक व्हाई शी डूइंग दिस एट दिस एज. कोई लोग बोलते थे नहीं ज़रूरत होगी घर में, व्हाटएवर, लाइक पीपल टॉक. लोग तो काफ़ी लगता है इनके हीरे जवाहरात नहीं बिक रहे हैं. पीपल टॉक व्हाटएवर दे वांट. बट क्या बोलते थे रिश्तेदार कुछ नहीं बोलते थे, बिकॉज मैंने तो सुना नहीं, मुझे पता नहीं. बट दोस्त काफ़ी मेरे स्कूल के जो दोस्त होते थे, दे यूज्ड टू हैव वियर्ड एनालॉजीज ऑफ व्हाई एम आई डूइंग दिस. क्या एनालॉजी? व्हिच वाज सम पीपल फेल्ट नहीं ज़रूरत होगी, घर में ज़रूरत होगी, इसीलिए काम पे जाना पड़ रहा है. कोई समझ ही नहीं पा रहा था उस वक्त पे कि मैं सिर्फ मुझ में वो बहुत एक तमन्ना थी. सुंदर इस्तेमाल. That's so perfect. Okay, so खुद ही बोल भी थी. So it was always there. It was this burning desire in me कि मुझे करना है और मैं कैसे भी करूँगी. And I don't think ये लोग समझ पा रहे थे, और naturally because मैं बहुत छोटी थी उस वक्त. तो माधुरी और श्रीदेवी को देख के ये तो सीख लिया अपने दिमाग में कि अदाएं कैसी होनी चाहिए, हरकत सेट पर कैसे होना है, उसके क्या रूल बुक थे? The thing with set life is कि आपको I'll tell you an instance. मैं उसी दौरान आई गॉट एन एड कमर्शियल. आई थिंक ये मैंने फिल्म शूट कर ली होगी पहली, एंड उसके बाद मैंने एक एड कमर्शियल किया जो था टूथपेस्ट का. एक टूथपेस्ट का कमर्शियल कर रही थी मैं. आई वाज एज अ मॉडल बिकॉज आई वाज एन एस्टैब्लिश्ड एट दैट पॉइंट. आई वाज डूइंग इट लाइक अ मॉडल, एंड I think that there was one particular shot or take which went 35 takes, and it was a very long shot, and it was a ad film. So I questioned the filmmaker at that point, whoever that person was. I don't remember, but I was a young kid, and I didn't question or break or get irritated or
think why are they making me do this, why is it not happening. और शॉर्ट में हो क्या रहा था?